IFS. Over here we discuss all the papers of UGC NET which came in the previous years for different subjects. In today's video we are discussing the paper of law subject December 2023. So friends, if you are preparing for UGC NET and you want to clear the JRF, this channel will be very useful and will be very helpful for you in your preparation for UGC NET papers. And अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ. And don't forget to subscribe the channel, and while subscribing don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of our upcoming video. So let's move on to the question paper. So here we are discussing only law section. Okay. So question number 51. Malice in law. What is malice in law? It is intentional doing of a wrongful act and improper motive. So it would be 4. अब आप देख लीजिए कि ए का 4 कहाँ पर है. तो ए का 4 देखिए एक में ही है और 1 ही इसका आंसर हो जाएगा. आगे आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, देख सकते हैं, उस कोई बात नहीं है. तो इसमें अगला क्या है? मेलफिसेंस क्या होता है? कमीशन ऑफ एन अनलॉफुल एक्ट विच आर एक्शनेबल पर से. इसका हो गया 1. मिसफिशियंस, इट इज इम्प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ लॉफुल एक्ट. ठीक है. नॉनफिशियंस, ओमिशन टू परफॉर्म, मतलब आपने काम नहीं किया. तो 1 ही इसका आंसर हो गया. नेक्स्ट इज 52. A man's nationality is a continuing legal relationship between the sovereign states on the one hand and the citizen on the other. The fundamental basis of man's nationality is membership of an independent political community. This definition of nationality was given by British Mexican Claims Commission in the case of, which case was this? This was Lynch. 4 is the answer. और अगर पूरा नाम देखेंगे तो इसका था लिंच वर्सेस यूनाइटेड मैक्सिकन स्टेट्स. जो मैक्सिको है कंट्री, उसका नाम पहले क्या था? यूनाइटेड मैक्सिकन स्टेट्स. सो 4 इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 53. विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. तो कौन कौन से हैं? राइट टू लिबर्टी, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन. दे आर फर्स्ट जनरेशन ह्यूमन राइट्स. सो बी, सी एंड ई, 2 इज द आंसर. नेक्स्ट 54. Article 163 of the Constitution says that there shall be Council of Ministers along with the Chief Minister to aid and advise the Governor in exercise of his functions, except so far he is required by the Constitution to exercise his functions or any of them in his discretion. Under what circumstances Governor can be called to exercise his discretion? Appointment of Chief Minister? Okay, yes. Dismissal of Ministry or dissolution of Assembly? Yes. Submitting report to President for proclamation under Article 356? Yes. Appointment of High Court judges? No. कोई रोल नहीं गवर्नर का अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस में, बिकॉज इट इज डन बाय प्रेसिडेंट. ए, बी एंड सी, 1 इज द आंसर. आर्टिकल यहाँ बता ही दिया है. नेक्स्ट 55. अरेंज द फॉलोइंग केसेस डिसाइडेड बाय परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ये मस्कट डॉज केस ये आया था 1905 में. नॉर्थ अटलांटिक फिशरीज केस ये था 1910 में. वीर सावरकर केस 1911. रशियन इंडेमनिटी केस दैट वाज 1912. आइलैंड ऑफ पाल्मास केस इट वाज 1928 में डिसाइड हुआ था ये. ठीक है. तो क्या बन गया? ए, बी, सी, डी, ई, 1 इज द आंसर. परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन वाज फाउंडेड इन 1899. सीट कहाँ है इसकी जरा लिखिए जरा कमेंट सेक्शन में. Next is 56. Which article in the Constitution of India established National Commission to Schedule Caste? That is Article 338. All knows 2 is the answer. This was easy question. Next is 57. All sums realized by way of penalties under Competition Act are credited to Competition Fund या फिर Consolidated Fund of India. 2 is the answer. और ये कहाँ mention किया गया है? This is mentioned in section 47 of Competition Act 2002. Next is 58. The term contra prolerentum means contradictory contract या फिर standard form contract या फिर limited construction या फिर
एम्बिगिटी इज टू बी रिजोल्व अगेंस्ट द पार्टी हु इंसर्टेड लिमिटिंग टर्म। इसका मतलब क्या होता है, अगर किसी पार्टी ने कोई एम्बिगिटी छोड़ दी डॉक्यूमेंट्स में, तो जो इसकी इंटरप्रिटेशन आएगी दैट वुड बी अगेंस्ट दी दैट पार्टी हु ड्राफ्टेड दैट एम्बिग्विटी। ठीक है ना, इट शुड बी इंटरप्रेटेड अगेंस्ट द पार्टी दैट ड्राफ्टेड इट। सो 4 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 59, अरेंज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर द इंसर्शन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इन द आईपीसी। देखिए कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पर। ये आप एक दो तो गैस कर सकते हो बट सारे नहीं। बट इसमें आपको कैसे गैस कर सकते हो, देखो ए तो चारों में है, तो मतलब पहला ए तो सबसे पुराना है। ठीक है, ये आया था 1870 में। फिर 153 ए ऐड हुआ 1898 में, 120 ए 1913, फिर 304 बी 1986। ठीक है, डॉवरी डेथ के जो भी प्रोविजन है, अब ये 304 भी है और 113 भी है एविडेंस एक्ट में, ये कब ऐड हुए थे 1986 में। तो उससे आप एक गैस कर सकते हैं। तो मान लो आपको ये डी वाला पता है, तो डी 2 ऑप्शन हो गई, ये ऑप्शन आपके फिर कट गए। ठीक है, अब जो कॉन्स्पिरेसी का है ये बाद में आया था, तो उससे आप भी एक आइडिया लगा सकते हैं कि ये बाद का ही है। तो 1 इसका आंसर हो गया। इस तरीके से आप थोड़ा सा दिमाग लगा के कर सकते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 60, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आईटी एक्ट में कहाँ पर दिया गया है? दिस इज इन सेक्शन 14। फिर सिक्योरिटी प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस 16 में है, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है 15 में, एंड एट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज इन 11। तो क्या बन गया? 1 इज द आंसर। नेक्स्ट 61, विच कंट्री डज नॉट प्रोवाइड एनी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी ऑफ फंडामेंटल फ्रीडम्स? यूके में है? नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो यही आंसर हो गया। थोड़ा ट्रिकी है बट इजी है। 1 इज द आंसर। नेक्स्ट 62, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल इज हेडेड बाय अ चेयरपर्सन हु इज रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट। 2 इज द आंसर। और ये कहाँ प्रोवाइड किया गया है? ये प्रोवाइड किया गया है इन सेक्शन 3 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। Next 63, a Muslim can make a bequest of his property without the consent of heir to the extent of, कितना कर सकता है वो? 1/3 of his property। वेरी कॉमन क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। Next 64, arrange the following in the chronological order of its sequence in the Patents Act। तो consequence of secrecy direction, this is provided in section 37, grant of patent 43, date of patent 45, टर्म्स ऑफ पेटेंट 53, राइट ऑफ पेटेंटी 48। तो कैसे हुआ फिर? ए बी सी ई डी, 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 65, विच आर द फॉलोइंग प्रोविजंस इन द आईटी एक्ट प्रिस्क्राइब्स पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस। जो मेन जो पनिशमेंट्स हैं वो कहाँ पर हैं? 66, 65, 67 के अराउंड हैं। ठीक है ना, तो 65 हो गया, 66 डी हो गया, 67 बी हो गया, 52 इज डिलीटेड, 62 इज अपील टू हाई कोर्ट। तो क्या बन गया इसमें? ए बी सी ओनली। 1 इज द आंसर। नेक्स्ट 66, पोल्यूटर पे प्रिंसिपल इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल ऑफ गुड नेबरलाइननेस। व्हाट इज दिस प्रिंसिपल? प्रिंसिपल ऑफ गुड नेबरलाइननेस क्या कहता है कि इन इंटरनेशनल लॉ स्टेट जैसे कि इंडिया है और पाकिस्तान है, फॉर एग्जाम्पल, रिक्वायर टू रिकंसाइल देयर इंटरेस्ट विद देयर नेबरिंग स्टेट्स। दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ गुड नेबरलाइननेस। बट हमारे यहाँ कोई गुड नेबरलाइननेस नहीं है। फिर प्रिंसिपल ऑफ कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इज दैट? इट मीन्स ऑल आर रेस्पॉन्सिबल। प्रिंसिपल पब्लिक लायबिलिटी, इट इज इन टोर्ट्स, है ना, सब जानते हैं व्हाट इज पब्लिक लायबिलिटी। फिर प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंडेड प्रोसीजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ईपीआर, इट मीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंड ऑफ लाइफ कॉन्सिक्वेंस ऑफ देयर गुड्स। तो क्या हुआ फिर पोल्यूटर पे का? 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 67, व्हाट अमंग्स द फॉलोइंग आर नेसेसरी टू कंस्टिट्यूट अ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट?
टोटल रेस्ट्रेंट हो जाएगा जी यस. डिटेंशन मे बी एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव यस. इट शुड बी फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years at least. No, there is no requirement for that. Detection or restraint should be unlawful. यस बिल्कुल ठीक है. ये फॉल्स है ना यहाँ पर, तो अनलॉफुल ही हो. लॉफुल होगा तो फिर फॉल्स नहीं आएगा. तो क्या बन गया ए बी एंड डी. तो 3 इज द आंसर. नेक्स्ट 68. Supreme Court of India remarked that extradition with foreign states is except in exceptional cases governed by treaties or arrangements made in the case of. कौन सा केस था ये? It was State of Madras versus C.G. Menon. 3 इज द आंसर. कब आया था ये? इन 1954. ये क्यों बता रहा हूँ, क्या पता कभी नेक्स्ट एग्जाम में पूछ ले कि ये डेट जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वहाँ पर आपके लिए आ जाए. तो जैसे कि केसेस आते हैं जो इंपॉर्टेंट हो, मैं हमेशा बताता हूँ कि इसमें ये इनका ये ईयर है. बाकी का आप लिखिए जरा कमेंट सेक्शन में, थोड़ा सा अभी पार्टिसिपेट कीजिए, है ना. इनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ लेते हैं ये नेट के पेपर में. नेक्स्ट 69. अब मैच करना लिस्ट को. यूएन डेज रिलेटिंग टू आईपीआर एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब आता है? दैट इज ऑन April 26. अभी गया है रिसेंटली. वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, इट इज ऑन April 23. ये भी अभी रिसेंटली गया है. इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इट इज कमिंग ऑन May 22. फिर वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे इज April 21. तो क्या बन गया इसका? 4123. तो 4123 ये रहा. 2 is the answer. Next is 70. As per NGT Act, environment includes water, air, land, and other interrelationship which exist among and between water, air, and land and human beings, other living creatures, plants, microorganisms, and what is that? Ecosystem, biodiversity, a property, a climate. Property. 3 is the answer. और डेफिनेशन कहाँ प्रोवाइड की गई है? सेक्शन 2C ऑफ एनजीटी एक्ट. डेफिनेशंस में है, एनवायरमेंट डेफिनेशन वहां लिखी हुई है. नेक्स्ट 71. अकॉर्डिंग टू कौशल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2023, द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 इज अवेलेबल अगेंस्ट स्टेट एक्टर्स ओनली या फिर स्टेट एज वेल एज नॉन स्टेट एक्टर्स? बोथ. 3 इज द आंसर. नेक्स्ट 72. अब लिस्ट को मैच करना है. पनिशमेंट फॉर एक्सटॉर्शन का मेंशन किया गया आईपीसी में इन 384. अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी इन 393. डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी 403. क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट 409. तो क्या बन गया? 3412. सो 3 के ऑप्शन ये है, 3 4 ये रहा, एक ही है. 3 इज द आंसर. नेक्स्ट 73. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? In SS Lotus, the Permanent Court of International Justice define international law as principles which are enforced between all independent nations. बिल्कुल ठीक है. Professor Dias suggests that international law can never be called a law. No, ये wrong है. ये ऑस्टिन ने कहा था. फिर है सी. लॉर्ड हाल्सबरी when he was Prime Minister of England once remarked it was a misnomer to call international law as law. It should be better describe a branch of ethics. This is correct. फिर Russell has defined international law as the aggregate of the rules to which the nations have agreed to conform to their conduct towards one another. ये भी बिल्कुल ठीक है. फिर है नेक्स्ट E. According to Austin, international law is set and enforced by political sovereign authority. No, international नहीं है. Austin ने कहा था law is set and enforced by political sovereign authority. तो ये हो गया गलत. तो आंसर क्या बनेगा इसका? A, C and D. 2 is the answer. Next 74. The preamble of the Constitution of India can be amended या फिर cannot be amended? Can be amended only by Supreme Court या फिर cannot be amended because it is a part of basic structure of Constitution. It can be amended even if it is a part of basic structure. There is only one amendment till date, that is 42nd Amendment Act, है ना. उसमें क्या क्या ऐड किया गया था जरा लिखिए कमेंट सेक्शन में. हिंट दे देता हूँ आपको. SI बताइए क्या है ये. 1 इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 75. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच ऑफ द कंट्री एक्सप्रेसली स्टेट्स दैट कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड? ये है
USA and South Africa. So A and B only. One is the answer. यूके का तो है नहीं और इंडिया में लिखा नहीं हुआ है, तो ऑप्शन क्या बच गए? तो ये तो मतलब इजी क्वेश्चन है। अगर आप ऑप्शंस के हिसाब से भी करेंगे तो इंडिया यूके तो वैसे ही निकल जाएंगे, ए भी बचेगा इसमें। और ऐसा कुछ है नहीं कि भी बी अलोन या फिर ए अलोन, तो आप आंसर लगा सकते हैं इजीली। ये इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट 76, फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 51A कैन बी एनफोर्स्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, या फिर कैन बी यूज बाय सुप्रीम कोर्ट इन इंटरप्रिटेशन, या फिर कैन बी अमेंडेड बाय द स्टेट, या फिर हैज बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट ओनली वंस। कैन बी एनफोर्स नो, यूज्ड यस, स्टेट अमेंड कर सकती है नो, और वंस अमेंडेड यस। कब अमेंड किया गया? 51A जो है कब ऐड किया गया था? बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। एंड देयर वाज अमेंडमेंट ऑफ 86th अमेंडमेंट, जहां पर एक 11th ड्यूटी ऐड की गई थी के। अर्लियर देयर वर ओरिजिनल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज। 51A के जो है वो ऐड किया गया बाय 86th अमेंडमेंट, तो ये 11 हो गई फिर, ठीक है ना। तो इसमें बी एंड डी आर करेक्ट, 1 इज द आंसर। Next is 77. To protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers, and wildlife, and to have compassion for their living creatures, is provided in which part of the Constitution? What is this? This is a fundamental duty. 2 is the answer. 51AG. Clause G, ये है fundamental duty. Next 78. A makes a contract with B to buy B's horse if A survives C. This contract can be enforced by law only when C dies during lifetime, या फिर A dies in lifetime of C. A dies in lifetime of C. 2 is the answer. When C dies in lifetime of A. So 1 is the answer. And this is section 32 of Contract Act, and this is illustration A in that section. 79. What amongst the following unnecessary characteristics for libel? It is defamation of permanent form. Yes, this is correct. The burden of proof that the words are false lie upon the plaintiff. No, that would lie on the defendant. No actual damage need to be proved. This is correct. Falsity of charge is presumed in the favor of plaintiff. This is also correct. So A, C, D are correct. 4 is the answer. Libel is a part of defamation. There are two types of defamation, libel and slander, है ना। नेक्स्ट इज 80। अब स्केड्यूल्स बताने हैं आपको, मैच करना है लिस्ट को। फिफ्थ स्केड्यूल क्या कहता है? फिफ्थ स्केड्यूल प्रोवाइड्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ स्केड्यूल एरियाज एंड स्केड्यूल ट्राइब्स। सो 3 बन जाएगा इसका। 8 आपको पता ही है, लैंग्वेजेस है। 10th क्या है? डिस्क्वालिफिकेशन वाला प्रोविजन फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डिफेक्शन। 4th ही बच गया, एलोकेशन ऑफ सीट्स। क्या बन गया इसका? 3124, 3124, दिस इज हियर। एंड एनीवेज मान लो आपको 8 स्केड्यूल पता है कि लैंग्वेजेस का 8th है, तो बी का 1 देख लीजिए। बी का 1 जो है एक में ही है। कितना इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट 81। द डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेट असाइसिस हैज एसेंशियली डेवलप्ड as a result of progress made in law reporting. Since the law in India is mostly based on English law, the system of law reporting is fairly developed in India. This is also correct. Both are correct. 1 is the answer. Next 82. The right of private defense extend to causing death under which provision of IPC? Under section 100 and 103. 2 is the answer. Very easy question. Next 83. With respect to which of the following kind of IPR there exists a statutory ban for assignment? पेटेंट में कर सकते हैं यस, ट्रेडमार्क में यस। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन तो एक पर्टिकुलर एरिया के उसको सामान को दी जाती है ना, तो वो असाइन कैसे करेंगे? वो असाइन नहीं कर सकते। लेआउट डिज़ाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स ये कर सकते हैं, तो क्या नहीं कर सकते फिर? 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 84। अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन डेफिनेशन ऑफ ऑनरशिप, द एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑनरशिप आर इनडेफिनेट यूज होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। प्लेनरी कंट्रोल ओवर द ऑब्जेक्ट, नो। अनरिस्ट्रिक्टेड डिस्पोजिशन, ये बिल्कुल ठीक है। बंडल ऑफ राइट्स, नॉट नेसेसरी। अनलिमिटेड ड्यूरेशन, यस। सो A, C and D are correct ones. 3 is the answer. Next is 85. Arrange following cases in sequence of the year they were decided.
तो ये कंपनी लॉ के केसेस हैं। सबसे पहले केस कौन सा आया था, सबसे पुराना केस बताइए इसमें कौन सा है? तो एशबरी रेलवे कैरेज कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची, ये आया था इन 1875। फिर रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कैंड, दिस इज 1856। मोहरी बीबी धर्मदास घोष 1903, सब जानते हैं ये तो। स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड वर्सेस सीटीओ विशाखापट्टनम 1963। सालोमन सालोमन 1897। तो सबसे पुराना कौन सा हुआ, रॉयल ब्रिटिश बैंक वाला है ना। तो BAE, तो BAE यहीं पर है, देखो ये रहा 1 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट 86, अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट स्पिंडल रिलेशनशिप एंड डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप इंक्लूड्स रिलेशनशिप बाय फुल हाफ यूट्राइन यस, अडॉप्शन यस, लेजिटिमेट यस, फोस्टेज नहीं होता, इलेजिटिमेट ब्लड रिलेशंस यस। तो क्या बन गया, A, B, C and E, 2 is the answer. Next is 87, which of the following are characteristics of government promissory note? It is a promise of President of India or Governor of State. This is correct. It is regulated by the Indian Securities Act. This is also correct. They are not negotiable instruments. No. They are negotiable instruments. So this is wrong. They can assign without endorsement. No, it cannot be assigned without endorsement. So this is also wrong. A and B only, 1 is the answer. Next is 88. Non-obstante clause in section 145 of Negotiable Instrument Act provides for which of the following? Dispense with the procedure under section 200 CRPC. This is correct. Procedure for examination of complainant witness on oath is done away. Yes. Affidavit of complainant and witness can be accepted. Yes, this is correct. Sworn statements recording by the magistrate is dispensed with. This is also correct. So A, B, C, D, 4 is the answer. Next is 89. A Hindu male having a Hindu wife changed his religion and adopts Islam in 2012. He marries again to Muslim girl in 2013. In 2014, his Hindu wife died. His second marriage is, और देखिए वो चाहे बाद में कन्वर्ट हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि वो कन्वर्जन के बाद दूसरा शादी कर लेगा, दैट वुड बी अ बाइगैमी। वैलिड होगी नो, वैलिड नो एज वाइफ डाइड नो, void as he has not taken consent of no, void as his second marriage amounts to bigamy. 4 is the answer. शादी कब की है, 2013 में, उस टाइम तो बाइगैमी हो गई ना। जो उसकी पहली फर्स्ट हिंदू वाइफ थी उसकी डेथ हुई है 2014 में, डजंट मैटर। 4 इज द आंसर। केस कौन सा आता है इसमें, सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज 90। अब मैच करना है, इनेक्टमेंट्स हैं, बताने हैं कौन से ईयर में आए ये। Civil Rights Act that came in 1955, Probation of Offender Act 1958, Immoral Traffic and Prevention Act 1956, Medical Termination of Pregnancy Act 1971। तो क्या बन गया, A का 1, D का 4, ये रहा 3 is the answer. Next is 91. The Nuremberg trial classified the crime punishable under international law into the categories of कौन कौन से थे, क्राइम्स अगेंस्ट पीस, वॉर क्राइम्स एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। 3 थे ये। सो C, D and E only, 3 is the answer. Next is 92. Article 19 of the Constitution is automatically suspended if proclamation of emergency is declared on the ground of war or external aggression. आर्म्ड रिबेलियन को हटा दिया गया है ना, आर्म्ड रिबेलियन की जगह क्या कर दिया गया, इंटरनल डिस्टर्बेंस। So A and B are correct. So 1 is the answer. Failure of constitution machinery, तो उस पर आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होता है। और ये कहाँ मेंशन किए गए हैं ये इसके बारे में कि भाई जहाँ सस्पेंड होगा ये, दैट इज इन आर्टिकल 358 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज 93. Arrange the following cases relating to advice direction of the Supreme Court to the state to enact a uniform civil code in the chronological order of their pronouncements. मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाबानो बेगम, केस ऑन मेंटेनेंस है ना, बहुत ही फेमस केस है ये। कब आया था, कौन सी ईयर में? दिस केम इन अप्रैल 1985. ओके। सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995. ABC वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली, that is in 2015.
Jordan Dingday versus SS Chopra in May 1985. John Vellemadden versus Union of India, that is in 2003. सबसे रिसेंट वाला कौन सा है फिर इसमें? सी, ABC वाला। तो देखो दो ऑप्शन है सी के। सबसे पुराना कौन सा हुआ फिर? 85 वाला। बट अब देखिए यहाँ पर इन्होंने ये बड़ा क्लोज कर दिया। मोहम्मद अहमद खान और ये जॉर्डन डिंगडे ना 1 महीने का ही फ़र्क है ना। तो ए इसमें पहले आएगा, अप्रैल वाला है, तो 3 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट इज 94. Arrange the following UN convention in their chronological order. UN Convention on Biological Diversity, this came in 1992. On climate change 1992 again. Convention against transnational organized crime है ये, this came in year 2000. Right of child 1989. UN Convention on jurisdictional immunities of states and their property, this is 2004. इस क्वेश्चन को जो है ड्रॉप कर दिया गया बिकॉज दे आर टू सिमिलर ऑप्शंस एंड यहाँ पर ये ऑप्शन भी इन्होंने ठीक नहीं बनाया। डी वाला देखिए, डी सबसे पहले आया था तो डी यहाँ आ गया, उसके बाद फिर इन्होंने बी लगाया है, फिर सी लगा दिया। सी कैसे आएगा? सी 2000 है और ये फिर ई लगा दिया, उसके बाद फिर क्लाइमेट चेंज वाला कर दिया। सो द ऑप्शन वाज आल्सो रॉन्ग, दिस क्वेश्चन वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम द आंसर की। नेक्स्ट 95. The term preferred by Bentham to explain his imperative concept of law is mandate. 2 is the answer. Simple one liner questions है इनके, अगर आपको आता है ठीक है, नहीं आता तो छोड़ दीजिए, there is no point to guessing. Next 96. In which country the appointment of judges are made through the parliament? कहाँ होती है? In UK. 1 is the answer. इंडिया में नहीं होती, तो all of the above इसमें ऑप्शन बनेगा नहीं। बाकी यूएस और यूके में कन्फ्यूजन हो तो यूके में भी पार्लियामेंट नहीं करती है ना। नेक्स्ट 97. विच काइंड ऑफ पेटेंट इज प्रोटेक्टेबल इन इंडिया? डिजाइन पेटेंट, यूटिलिटी पेटेंट या फिर प्रोसेस पेटेंट? इट इज प्रोसेस पेटेंट। 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 98. विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट्स इज रिलेटिंग टू पेटेंट्स? बुडापेस्ट ट्रीटी 1977. 1 is the answer. Madrid agreement क्या है ये? This is about the registration of marks. Bern Convention 1886, this was on protection of literary and artistic work. Washington Treaty 1989, this is on integrated circuits. 1 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 99. अब मैच करना है गीता हरिहरन वर्सेस RBI, किस पर है ये? ऑन गार्जियनशिप ऑफ माइनर चाइल्ड की इवन विदाउट फादर इन द लाइफ टाइम ऑफ फादर मदर कैन बी नेचुरल गार्जियन, है ना। सरला मुद्गल अभी बताया था मैंने, दैट इज ऑन वैलिडिटी ऑफ सेकंड मैरिज ऑफ हिंदू आफ्टर हिज कन्वर्शन टू इस्लाम। डैनियल लतीफी मेंटेनेंस पर है ऑब्वियसली। सीमा अश्वनी किस पर है? कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। तो क्या बन गया? 2413। द 2413 इज हियर, 1 इज द आंसर। Next is 100. Which among the following country do not follow the scheme of distribution of power? कहाँ नहीं है? यूके में नहीं है। 3 is the answer. Next is 101. Arrange the names of the following jurists in the term of chronological order of their birth. अब बताइए, इनका बर्थडे बताना है। जेरमी बंथम, इनका बर्थ हुआ था 15 फरवरी 1748। जॉन ऑस्टिन 3rd of March 1790। सर हेनरी मेन 15th August 1822। हांस कैल्सन 11th October 1881। इमैनुअल कैंट 22nd of April 1724। कोई डेट कॉमन है इसमें? नहीं है। तो सबसे पहले कौन आया फिर? तो सबसे एल्डर कौन हुआ? 1724, इमैनुअल कैंट। ई का देखिए ऑप्शन यहाँ पर एक ही है, फिर 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 102. असर्शंस एंड रीजंस। असर्शन है ट्रेड सीक्रेट एक्ट 2020 इज लेजिस्लेशन इनेक्टेड इन इंडिया टू प्रोवाइड फॉर कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड ट्रेड सीक्रेट्स। नो, ये जो है यूएसए में पास किया गया, इंडिया में नहीं किया गया, तो ये रॉन्ग हो गई स्टेटमेंट।
इंडिया हैज इनेक्टेड नंबर ऑफ लेजिस्लेशन टू क्रिएट लीगल फ्रेमवर्क ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये करेक्ट है। तो ए इज नॉट करेक्ट, आर इज करेक्ट, 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 103, A is lawfully arrested by Z, who is a police officer. A loses his self-control by grave and sudden provocation due to arrest and kills Z. A shall be punished under, वो लॉफुल एक्सरसाइज कर रहा है राइट को, तो फिर वहां पर कोई भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलता है और ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन भी नहीं होगा। ऑब्वियसली दैट शुड बी रीजनेबल, तो लॉफुल चीज़ों पर अप्लाई नहीं होता। तो क्या हो गया, ये मर्डर हो गया ना, तो 302 में आ जाएगा। फिर सेक्शन 302 IPC पनिशमेंट मिलेगी 302 के अकॉर्डिंग, 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 104, विच अमंग द फॉलोइंग मेक्स डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन? महबूब शाह वर्सेस एम्परर, यस करेक्ट है। वीरेंद्र कुमार घोष में किया गया था, नो, इट इज ओनली ऑन कॉमन इंटेंशन। अब देखिए, अब आगे आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्यों? देखिए ए और बी दो ही ऑप्शन यहाँ पर आपके बनते हैं, बिकॉज फिर बी और सी दो में ए तो है नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए। बी वाला है नहीं, तो बच गया एक, 2 इज द आंसर। अब एक बात देखिए, यहाँ पर जो इनके ईयर लिखे हुए हैं 1945, 25, तो ये जरा याद कर लीजिएगा, क्या पता नेक्स्ट वाला एग्जाम में जो आने वाला है उसमें आपसे पूछ लें। नेक्स्ट 105, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स अंडर सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट? रेस्पोंडेंट इज कन्विक्टेड फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस, इट इज नॉट अ ग्राउंड। रेस्पोंडेंट हैज रिनाउंस्ड द वर्ड, ये है। has ceased to be a Hindu by conversion, yes ये भी है। has not been heard alive for 7 years, ये भी है। तो कौन सा नहीं है? 1 नहीं है, तो 1 is the answer। Next is 106, consider the following statement relating to death penalty. Death sentence follow deterrence theory, ये बिल्कुल ठीक है। Parliament of India wants to remove death sentence, no, ये कहीं भी कोई इसकी न्यूज़ नहीं है। Recent amendments in IPC and other proposals have added new offences with death sentence, बिल्कुल ठीक है ये। The Parliament wants harsh punishment for heinous crimes through capital punishment, बिल्कुल ठीक है। After rarest of rare case doctrine, the number of capital punishment is reduced, this is also correct। So A, C, D and E are correct, 1 is the answer। Next is 107, which among the following provisions of Constitution of India mandates criminalization of prohibited conduct? Prohibited conduct कौन सा है? आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी वाला, एंड 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। तो 2 हो गया, 17 एंड 23, 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 108, आर्टिकल 28 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस 4 टाइप्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन गिवन बिलो, in which of the following institution religious instructions can be imparted with the consent of individual or otherwise? इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन बाय स्टेट, क्या वहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इम्पार्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट, वहाँ कर सकते हैं। रिसीव्ड एड आउट ऑफ स्टेट फंड, हो सकता है। इंस्टीट्यूशन दैट आर एडमिनिस्ट्रेड बाय द स्टेट बट एस्टैब्लिश्ड अंडर एनी ट्रस्ट और एंडोमेंट, वहाँ हो सकता है। आर्टिकल में लिखा हुआ है नॉट होली मेंटेन बाय द स्टेट। सो आंसर क्या रहेगा इसमें? B, C एंड D। नेक्स्ट 109, विच अमंग द फॉलोइंग फॉलोज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? इंडिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है, दोनों में है। यूके में है बट यहाँ ऑप्शन में नहीं बन रहा, तो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ठीक रहेगा, 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 110, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इज अ प्रोस्पेक्टस इशूड प्रायर टू द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, बिल्कुल ठीक है ये। आफ्टर द इशू, नो। इज कंसर्न ऑफ शेयर होल्डर, नो। 1 इज द आंसर, दिस इज रिलेटेड टू कंपनीज एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, अब मैच करना है केसेस को प्रिंसिपल से। तो लिंक लेटर वर्सेस वॉकर, इस केस से कौन सा प्रिंसिपल आया था? प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग इन कंटेक्स्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग इन कंटेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। जोरी जॉर्ज वर्गीस वर्सेस बैंक ऑफ कोचीन, दैट इज importation of provision of ICCPR into Indian Constitution. What is ICCPR? ICCPR is International Convention on Civil and Political Rights. Okay. फिर ये राइट टू रजिस्टर नन ऑफ द अबव वोट, तो जो वोटिंग में ऑप्शन आते हैं ना भाई, आपने किसी कोई वोट नहीं करना, मतलब तभी कोई भी कैंडिडेट जो है वो लायक नहीं है, तो क्या होगा?
तो आप जो है नन ऑफ द अबव जो बटन ऑप्शन दबा सकते हैं। तो ये आया था पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस से। तो क्या बन गया इसका 4132। तो 4132 ये रहा, 4 इज द आंसर। नेक्स्ट इज 112। A1 and A2 plan to commit robbery. The mere agreement to commit this offense is punishable under which section? Obviously conspiracy है ये, तो punishable कहाँ होगा conspiracy में, 1 is the answer. Next is 113. When an absolute right is violated, the law conclusively presumes damage although the person wronged may have suffered no pecuniary loss. This was decided in which case? तो ये क्या था? This was ubi just EB remedium where there is right there is remedy. तो राइट सफ़र हुआ तो आप जो है रेमेडी ले सकते हैं, चाहे पेक्यूनियरी लॉस हुआ हो या ना हुआ हो। तो केस वाज एशी वर्सेस वाइट, 2 इज द आंसर। नेक्स्ट इज 114। डोमिनेंट पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। क्वेश्चन कहाँ से है? क्वेश्चन है ये कॉम्पिटिशन एक्ट से। तो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ इन रेलिवेंट इंटरनेशनल मार्केट, क्या वो देखेंगे? नो, इंटरनेशनल मार्केट क्यों देखना हमारे? कॉम्पिटिशन एक्ट इंडिया में एप्लीकेबल है। तो एंटरप्राइज ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ मार्केट फोर्सेज इन इंडिया, यस। अफेक्टिंग कंपटीशन ऑफ कंज्यूमर रेलिवेंट मार्केट इन इंडिया, यस। पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ इंजॉयड इन रेलिवेंट मार्केट इन इंडिया, यस। तो क्या हो गया? तो बी सी डी। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने ट्रिक क्या करी है, सी यहाँ पहले लगा दिया, फिर डी, फिर बी लगा दिया। तो बी सी डी नहीं लिखा, सी डी बी लिख दिया, बात एक ही है। तो 4 इज द आंसर। Next is 115. Assertion. Meher, dower is a sum of money which the Muslim husband agreed to pay to wife as a mark of respect for agreeing to marry him. Since Muslim marriage is a contract, it is necessary to that dower must be specified at the time of marriage, and it is not specified, it can be presumed. This is correct. फिर है if not paid earlier, meher become due on death of husband or dissolution of marriage by divorce. बिल्कुल ठीक है, ये तो बहुत करेक्ट हो गए। तो एंड इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई, तो 1 इज द आंसर। नेक्स्ट इज 116। इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इंडिया डज नॉट हैव लेजिस्लेशन टू स्पेसिफिकली कवर दैम एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ट्रेडिशनल नॉलेज के लिए है? नहीं है। स्ट्रीट आर्ट के लिए नहीं है। पब्लिसिटी राइट नहीं है। सेलिब्रिटी राइट नहीं है। कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए तो है, तो कॉपीराइट एक्ट है ना, उसमें कवर हो जाता है ये, ठीक है। ABCD वाले नहीं है, तो 3 इज द आंसर। Next is 117. As per the provision of Hindu Adoption and Maintenance Act, a bachelor male adopts a child. He subsequently marries a woman. Such woman shall be, तो क्या बन जाएगी? Be the adoptive mother बनेगी या फिर step mother of the adopted child। देखिए पहले अडॉप्ट किया, बाद में जो है मैरिज की है, तो फिर वो स्टेप मदर कहलाएगी। 2 इज द आंसर। और ये कहाँ मेंशन किया गया है? दिस इज मेंशन इन सेक्शन 14 सब सेक्शन 3 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में। नेक्स्ट 118। मेंस रिया डज नॉट इंक्लूड इंटेंशन, नॉलेज, रीजन टू बिलीव, यस। मोटिव नहीं होता, मोटिव इज नॉट देयर, सो 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 119। assertion and reason. Highly developed legal systems strive to create an autonomous apparatus of legal concept, legal techniques and legal norms. This is correct. And its reason है law needs to be endowed with logical consistency, predictability and stability. ये बिल्कुल करेक्ट है, तो एक्सप्लेनेशन हो गई इसकी। 1 is the answer. Next is 120. As per the Partnership Act, partnership is defined under which section? तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, सेक्शन 4। 4 is the answer. Next 121. Consider the following statement. Fundamental rights are expressly provided in the US Constitution. बिल्कुल ठीक है। फिर restriction on fundamental rights are expressly provided in US Constitution. No, ये नहीं है। Fundamental rights and human rights are same in India. No, नहीं है। Directive principles in India are not enforceable by courts. बिल्कुल ठीक है। तो A and D are correct. 2 is the answer. Next is 122. A human being ceases to be a person in law as in fact on being adjudged as an insolvent. No, यहाँ पर as लिखना चाहिए। On renunciation of citizenship, no. On conviction, no. At death, yes. 4 is the answer. डेथ के बाद ही तो वो सीज करेगा ह्यूमन बीइंग। ऐसे 123. Arrange the following cases in sequence of their year of verdict.
देखिए ये मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की जो मैंने वीडियो बनाई है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज वीडियोस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यू कैन सी दिस क्वेश्चन ओवर देयर. इट हैज़ बीन आस्क्ड सेवरल टाइम्स. केशवानंद भारती केस, इट केम इन ईयर 1973. शंकरी प्रसाद 1951. गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967. सज्जन सिंह स्टेट ऑफ राजस्थान 1964. तो क्या बन गया? BDCA. BDCA 1 is the answer. This is a repeat question. Next is 124. Which of the following statement in relation to the dissenting judgment of Dr. Radha Vinod Pal in the Tokyo trial can be correctly attributed to him? War is beyond the scope of international law. This is correct. Conduct of war is within the scope of the rules of international law. This is correct. Act of Paris brought about no change in the status of war. This is also correct. International law has developed so much so as to make war a crime. No, अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है. Conspiracy is an independent crime under international law. No. So A, B, C are correct. 1 is the answer. देखिए जो ये टोक्यो ट्रायल है, इस पर एक मूवी भी बनी हुई है. इवन न्यूरमबर्ग ट्रायल पर भी मूवी बनी हुई है, तो आप देख सकते हैं उसको. नेटफ्लिक्स पर है ये, एंड इट इज़ अ वेरी गुड मूवी. आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज़ अ टोक्यो ट्रायल, क्या हुआ था, कौन कौन जजेस थे उसमें, इंडियन जज वहाँ पर कैसे पहुँचे, है ना. नेक्स्ट 125. मैच करना है कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन है ये. प्रोड्यूसर कंपनी कौन सी होती है? दैट इज फॉर्म टू कन्वर्ट कोऑपरेटिव इनटू अ कंपनी. स्टैट्यूटरी कंपनी इज डू नॉट नेसेसरली रिक्वायर MOA. सेक्शन 8 कंपनी एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट. स्मॉल कंपनी पेड अप शेयर कैपिटल जिसकी 50 से और 5 करोड़ हो, एंड टर्नओवर 2 करोड़ टू 20 करोड़ हो. तो क्या बन गया? 2 इज द आंसर. नेक्स्ट 126. There is no distinction between de facto and de jure recognition for the purpose of giving effect to the internal acts of the recognized authority. This was held so in the case of, कौन से केस में बोला गया था ये था लूथर वर्सेस सेगर में. 2 is the answer. Next 127. American realist Judge Jerome Frank described his own attitude towards realism as one of decisive cynicism या फिर constructive skepticism. 2 is the answer. Next 128. Arrange the following cases in sequence in which they decided. अब ये ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल केस कब आया था? This is the one of the oldest cases in English law. It came in 1410. Donovan versus Stevenson 1932. Ashe versus White 1703. Drennan versus Fletcher 1868. तो फिर क्या बन गया इसका? तो बन गया इसका ACDB. और देखिए अगर आपको ये ग्लॉसेस्टर पता है तो आप पूरा केस आराम से कर सकते हैं. एंड अगर आपको ये पता है कि डोनोवन स्टीवनसन है वो 1932 का, तो भी आप एक आराम से इसको बना सकते हैं. बिकॉज पहले देखिए एक का एक ही है और आखिर में बी फिर एक ही है, तो 1 इसका आंसर हो गया. नेक्स्ट 129. कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी फॉर क्रिएशन ऑफ एजेंसी. दिस इज प्रोवाइडेड इन विच सेक्शन? दिस इज सेक्शन 185 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. 1 इज द आंसर. Next 130. The General Assembly of UN passed the Uniting for Peace resolution on, कब पास हुआ था ये? On November 3, 1954 is the answer. उसको क्या बोलते हैं? This is resolution number 3775. क्यों बता रहा हूँ? हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम पूछ लें ये. Next 131. Which of the following statement given below are correct? A wrong is an act contrary to the rule of rights and justice. ये बिल्कुल ठीक है. फिर immoral and natural wrong is an act which is morally and naturally wrong being contrary to rule of natural justice. बिल्कुल ठीक है. Illegal wrong is an act which is legally wrong being contrary to the rule of legal justice and violation of the law. This is correct. A legal wrong is always a moral wrong. No, ये wrong है. Moral wrong is always legal wrong. ये wrong है. तो natural and legal wrongs cannot form intersecting circles कर सकते हैं वो. तो 1 इसका आंसर रहेगा. A, B, C are correct. Next 132. Arrange the following in chronological order of their enactment. भी प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट कब इनेक्ट किया गया था? 1993 में. नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट आया था 1990 में. 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिससे कि
नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है इस्टेब्लिश किया गया था इन 2003। फिर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992। तो ओल्डेस्ट कौन सा हुआ? नेशनल कमीशन फॉर विमेन एक्ट। तो बी पहले आ गया, देखिए बी एक में ही है, तो 4 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट 133 assertion reasons। assertion है the test of proportionality, necessity and balancing are found at prominent places in the GATT as well as the SPS and TBT agreements। अब GATS क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज। GATT क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। SPS क्या है? सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी एग्रीमेंट। TBT क्या है? टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। तो ये करेक्ट है। रीजन है द मीनिंग ऑफ दिस टेस्ट एंड देयर इंटर रिलेशनशिप इज नॉट ऑलवेज क्लियर। ये जो है करेक्ट तो है बट इसकी वो रीजन नहीं बन गया, तो 2 इसका आंसर रहेगा, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट 134 सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट प्रोवाइड्स दैट a Hindu marriage may be solemnized in accordance with the customary rites and ceremonies of either party thereto, consider the following situation and decide in which case a marriage is validly solemnized। At the time of marriage all essential strict ceremonies are performed। क्या essential है ये? Yes। At the time of marriage all customary rites and ceremonies of bride family are performed। ये ठीक है। हाफ ऑफ ब्राइड हाफ ऑफ ब्राइडग्रूम, नो में लिखा हुआ है आइदर ऑफ एनी पार्टी, तो एक ही के होंगे फिर वो। फिर ब्राइडग्रूम डिसाइडेड टू परफॉर्म सिंपल सेरेमनी एक्सचेंज ऑफ रिंग्स, नो। फिर ये स्टार्टेड लिविंग टुगेदर हस्बैंड वाइफ विदाउट परफॉर्मिंग एनी सेरेमनी, तो ए एंड बी आर करेक्ट, 1 इज द आंसर। नेक्स्ट 135 द फॉलोइंग आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड और प्लेसेस। तो 51AG पहले पूछ लिया है इस पेपर में ही, ठीक है ना। 48A जो है दिस इज ऑल्सो फॉर वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट, एंड आर्टिकल 49 एज वेल दिस इज फॉर द प्लेसेस। सो क्या आंसर बन गया इसका? A, C एंड E, 1 इज द आंसर। नेक्स्ट 136 मोरल राइट इज अ कंसेप्ट प्रिवेलिंग इन इंडस्ट्रियल डिजाइन या फिर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। मोरल राइट कहाँ होता है? कॉपीराइट में, 4 इज द आंसर। Next 137 Solomon distinguishes between possession in fact and possession in law। He treated possession in fact as a fallacy, fiction, a conception, as a conception, 3 is the answer। Next 138 which among the following expressly contains a provision for right to bear arms as a fundamental right। क्या कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये है? नो। अमेंडमेंट 2 ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। 108 अमेंडमेंट ऑफ इंडिया, नो। ह्यूमन राइट एक्ट यूके, नो। तो बी ही आंसर रहेगा, ओनली बी, 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 139 अब मैच करना केसेस को और उनके ईयर को। हुस्नैरा खातून आया था कब? 1979 में। कदरा पहाड़िया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये आया था 80 में। MS हस्कोट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, दिस केस केम इन 1978। खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 81। तो क्या बन गया इसका? 3241, so 4 is the answer। Next 140 in which of the following cases it has been held that a doctrine of basic feature does not constitute a limitation on the legislature while enacting ordinary legislation। This was held in case of Indira Gandhi versus Raj Narayan, 1 is the answer। अब आ गए ये पैराग्राफ, तो पैसेज है, इसको आप रीड कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिए और रीड कर लीजिए। आई एम डूइंग द क्वेश्चंस ओनली। सो क्वेश्चन नंबर 141 सेज विच इज डिस्टिंग्विश्ड एज कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसको बोला था इसमें? इसको बोला था फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, दोनों को, तो 4 इसका आंसर रहेगा। फिर से वही पैराग्राफ है। क्वेश्चन नंबर 142 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, या फिर पॉलिटिकल प्रोसेस डिसीजन मेकिंग, या फिर हार्मनी ऑफ बैलेंस बिटवीन पार्ट 3 एंड पार्ट 4, दैट इज फंडामेंटल राइट एंड DPSP। तो 4 इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 143 द नोशन दैट एवरी सिटीजन मस्ट डू हिज ड्यूटी टुवर्ड्स द नेशन एज वेल एज द फेलो सिटीजन इज इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन कौन से पार्ट में है? दैट इज इन पार्ट 4A, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज।
ड्यूटी की बात की है ना यहाँ पर, देखिए 3 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144, द प्रोटेक्शन एंड एनफोर्समेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स अंडर आर्टिकल 32 इज कन्फाइंड इन इंडिया टू फंडामेंटल राइट्स या फिर इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी, राइट टू वोट। फंडामेंटल राइट्स 1 इज द आंसर। अब ये क्वेश्चन ऐसे है ना, आप बिना पैसेज को रीड करे इसको आंसर कर सकते हैं अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से पढ़ा हुआ है तो। नेक्स्ट 145, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्कसेस द विजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फ्रेमर्स एज टू विच काइंड ऑफ सोसाइटी दे एस्पायर टू एस्टैब्लिश इन द कंट्री। इट इज पार्ट 3, पार्ट 4 अगेन, फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP 2 इज द आंसर। अब ये सेकंड पैराग्राफ आ गया, ये देखिए क्या है। दिस इज द ग्रेटेस्ट पैराडॉक्स इन्वॉल्व्ड इन द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक फीचर। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 146 क्या कह रहा है, व्हाट डज द ऑथर कंसिडर टू बी द डॉक्ट्राइन यूज्ड टू सर्कमस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेचुरल लॉ। 1 is the answer. Next 147, which of the following options reflect the opinion of the author as can be discerned from the cited paragraph? A critical and negative view of the way the court uses the doctrine of spirit of the constitution and natural law to circumscribe the constitution itself. देखिए 146 का आंसर कहाँ दे दिया गया, 147 में लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ यहाँ पर, 1 इसका आंसर रहेगा। Next 148, while determining the validity of an ordinary law, what can the court look into? The court cannot look into the express provisions of constitution, cannot look into the necessary implications, या फिर can only look into express provisions of constitution or necessary implications thereof. 3 is the answer. Next 149, what does the author identify as the greatest paradox involved in the doctrine of basic feature? क्या है greatest paradox? The doctrine does not constitute limitation on legislature while enacting ordinary legislation, but operates as limitation on the constituent body, though the constituent body is sovereign authority while the legislature is not. 4 is the answer. बिल्कुल ठीक है ये। Next is 150. As per the apprehension of the author, when may a court travel beyond the express provision of the Constitution to invoke some principle superior to the express provisions while exercising the judicial power to interpret the Constitution, या फिर when the court wants to assert power of judicial review, या फिर when the validity of Constituent Amendment Act is challenged? 3 is the answer. So friends, here we have discussed all the questions of UGC NET December 2023 law subject. I hope you like the video. In case you find any discrepancy, kindly inform us and comment in the comment section. अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई suggestions or advice हो, you can always go in the comment section and write it over there. We always appreciate your comments and suggestions. So friends, देखते रहिए हमारे चैनल को and wait for more videos which are coming shortly. Thank you. Thanks very much for watching our videos.